Hello children, hope you all are fine. And yes children, we have completed chapter 11. Now let's move to chapter 12. Yes, it's very required, cleanliness and hygiene. In this chapter children, we are going to learn the importance of personal hygiene and the diseases caused due to unclean surroundings and lack of hygiene, and to learn the measures to maintain good hygiene. You are going to learn how to maintain good hygiene and describing the types of and sources of waste. Yes, you are going to learn the different sources of waste and its types, and you are going to learn about the problems caused by waste, and you are going to learn how to manage the waste. Okay children, so now let's tell me one habit to maintain the following. Yes children, there is a grid in your book that you have to fill. Healthy eyes, so you have to write one habit to maintain this. Healthy teeth, how can you keep your teeth healthy? And healthy skin, how you are going to keep your skin healthy. Now children, first begin with the personal hygiene. What does the hygiene word mean children? For a healthy body, it is important to observe personal cleanliness and to maintain clean environment in addition to a balanced diet. Yes children, if you want to stay healthy, apart from balanced diet, you have to keep yourself neat and clean. By keeping our body and surroundings clean, we ensure a disease free and healthy body. Yes, अगर आप हेल्दी डाइट लोगे, अपने आप को क्लीन रखोगे, अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखोगे, दैट मीन्स आप एकदम डिजीजेस फ्री रहोगे, है ना. सो हाइजीन इन सिंपल वर्ड मीन्स अ सेट ऑफ प्रैक्टिस performed specially through cleanliness for a healthy life. Hygiene is nothing but it's a special practice that you keep yourself healthy, है ना. Germs are harmful, you all know that, and microbes, they are very small that you are unable to see. You know, some germs are very small, we can't see through our naked eyes. हम germs को अपने naked eyes से देख नहीं सकते. That's why they make us unwell. इसीलिए वो हमें क्या कर देते हैं, unwell कर देते हैं, बीमार कर देते हैं. They spread diseases and can be transferred to people from air, water or direct contact. And what these germs do, ये क्या करते हैं children, diseases ट्रांसफर करते हैं एयर से या वाटर से या कॉन्टैक्ट से. हमारे क्या होते हैं, ये डिजीजेस फैलने लगते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन यू गो टू अ पार्क, आप जब पार्क जाते हो या मूवी या एनी पब्लिक प्लेस, इफ यू कम टू एन कॉन्टैक्ट, अगर ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं जो जर्म्स लेकर फिर रहा हो, जिससे डिजीज हो सकते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि हाउ you can get affected. That's why children, आपने देखा है अभी जो डिजीज चल रहा है, दैट इज कोरोना, वो कांटेक्ट में आने से ही स्प्रेड हो रहा है. दैट्स वाई आप देख रहे हो अभी सारा कुछ हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, एज वेल एज वी आर कीपिंग आवरसेल्फ हाइजेनिक. इससे बचने का बस यही रास्ता है. दैट्स वाई दैट्स वाई क्या, ये कांटेक्ट में आने से स्प्रेड हो, इसीलिए हम लोग क्या कर दिया, हमने सब कुछ बंद कर दिया. That's so why आप अगर फिट रहोगे, अगर आप क्लीन रहोगे, अगर आप हाइजीन का ध्यान रखोगे, तो वो डेफिनेटली आपको वो डिजीज इफेक्ट नहीं करेगा. So some of the good habits children today you are going to learn and please try to follow it at home. आपको ये follow करना भी है. Care of eyes. How you are going to take care of your eyes children? Your eyes are very delicate part of your body, you know, and you need to protect from dust, bright light and diseases. Yes, आपके आईज जो है वो बहुत डेलिकेट पार्ट है चिल्ड्रन बॉडी के, और इसको आपको अपने डस्ट से
या ब्राइट लाइट से डिजीजेस से बचा के रखना है। वॉशिंग द आईज 2 or 3 times a day with water will remove dust and germs that stick around the eyes। हमारे आइज के अराउंड जो डस्ट और जर्म्स रहते हैं चिल्ड्रन, उसको आप डेली अगर आप डे में 3 से 4 टाइम्स वॉश करोगे तो वो डस्ट क्या हो जाएगी, निकल जाएगी एंड आप जर्म्स फ्री हो जाओगे। एंड द वाटर विल रिमूव जर्म्स, डेफिनेटली आपको पता है वाटर जर्म्स पूरे निकाल देता है। एंड सो that this dust and germs can cause direct diseases with the conjunctivitis and trachoma। आपको पता है जो आइज के जो डिजीज हो जाते हैं, जो ये जर्म्स आपको कौन से डिजीज से आइज आपकी अफेक्ट होने लगती है, कंजक्टिवाइटिस और ट्राकोमा। ट्राकोमा इज अ डिजीज, इरिटेशन होने लगती है, जैसे आपकी आइज में जलती है, इरिटेशन होनी होती है, वो एक डिजीज होती है चिल्ड्रन। Okay, next, eyes should be kept protected from bright light, sunlight by wearing dark glasses। yes, जब अगर आप बाहर जाओगे तो सनलाइट में जाओगे और वहां पर बहुत ब्राइट लाइट है तो आप सनग्लासेस पहनने चाहिए आपको। ऑल्सो वी शुड नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, आप कभी भी सन को डायरेक्ट नहीं देखेंगे बिकॉज आपके आईज डैमेज हो जाएंगे। रबिंग द आईज विथ आवर हैंड्स causing germs present on them to enter the eyes। आप अपने अगर हैंड से रब करोगे चिल्ड्रन, तो अगर आपके हैंड्स में जो भी डिजीज जर्म्स लगे हैं वो आपके आईज में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। एंड देन आप रबिंग करोगे तो डेफिनेटली वो डिजीजेस जर्म्स अफेक्ट करेंगे आपको। रीडिंग अ बुक इन डिफरेंट एंगल्स, अगर आप एंड इन इनसफिशिएंट लाइट विथ कॉजिंग स्ट्रेन ऑन द आईज। यस, आप रीडिंग जब लाइट आप पढ़ने बैठ रहे हो तो यू मस्ट फोकस की लाइट आपकी कैसे आ रही है, आपको क्लियर दिख रहा है। एंड आप कभी भी लाइन डाउन होकर इधर लेटकर ऐसे रीडिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर बैठकर आप अपनी रीडिंग करोगे। इफ यू ऑब्जर्व एनी इचिंगनेस और रेस्टलेसनेस इन योर आईज, you should redness in your eyes, you should visit a eye specialist। ophthalmologist is the eye specialist children। आप उनसे अपने आईज का करेंगे, चेकअप करवाएंगे। Now care of teeth, how we are going to take care of it? You all know that your teeth will help to bite food। आपको पता है आपकी teeth आपकी biting and chewing में help करती हैं। Healthy teeth रखने के लिए children you have to brush your teeth twice in a day, morning and at night। We must rinse our mouth after every meal। हमें खाना खाने के बाद अपने माउथ को रिंस करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारे टीथ के बीच में जो भी पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स रहते हैं वो निकल जाते हैं। एंड वी शुड यूज अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग। टंग को क्लीन करने के लिए हमें क्या यूज करनी चाहिए, टंग क्लीनर यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टंग अगर क्लीन नहीं रहेगी तो आपकी माउथ में से बैड स्मेल आने लगेगी। यू शुड अवॉइड ईटिंग टू स्टिकी एंड स्वीट फूड्स, बिकॉज अगर जो जाके स्टिकी टीथ में लग जाता है तो क्या होगा, अगेन वहां पे कैविटी होने लगेगी। रॉ फ्रूट्स एंड सैलड सच एज कैरेट, एप्पल एंड रेडिश हेल्प इन कीपिंग आवर टीथ एंड हेल्दी। आपको पता है जो रॉ फ्रूट्स है, जैसे कि एप्पल हो गया, रेडिश हो गया है, ये आप जब बाइट करते हो अपने तो इससे क्या होता है, आपके टीथ को हेल्दी भी होते हैं और क्लीन भी रखते हैं। Regular checkup with the dentist is also required। At every 6 months you have to get a checkup from a dentist। Okay children, now care of hands and feet। Yes children, it's very important। Washing hands and feet with soap ensures removal of dirt, and hands and feet tend to accumulate diseases causing germs, and by washing them we can prevent the spread and infection of the infection। अगर आप अपने हैंड्स एंड लेग्स अच्छे से वॉश करोगे, फीट अच्छे से वॉश करोगे तो चिल्ड्रन ये डिजीज को स्प्रेड करने में रोकेंगे। वी शुड वॉश आवर हैंड्स आफ्टर वॉशरूम यूजिंग वॉशरूम। जब भी आप वॉशरूम जाओगे चिल्ड्रन प्लीज वॉश योर हैंड्स। एंड आफ्टर टचिंग द पेट एनिमल्स, आपके पेट एनिमल्स को टच करने के बाद भी आप क्या करोगे, अपने हैंड्स वॉश करोगे। एंड बिफोर मील्स एंड आफ्टर meals you have to। Now how you are going to take care of your skin? Yes children, it is essential that you should take a bath every day to keep your skin clean, because you know कि आपका sweat आता है and sweat से आप क्या होते हैं, आपकी body dirt में हो जाती है। Bathing, make sure that you should take a bath with soap and water, and what happened, it will clean the skin from disease causing germs। Clothing should be
ऑलवेज क्लीन, आपकी क्लोथिंग भी क्लीन होनी चाहिए, है ना। अंडरगारमेंट्स जो आप पहनते हो वो भी रेगुलरली वॉश होने चाहिए, डेली वॉश होने चाहिए आपके अंडरगारमेंट्स। Now, how to take care of your hair? Children, hair should be washed with shampoo, soap twice in a week. Oiling or massage keeps the hair and scalp healthy. And हमारी बॉडी, अगर आप ऑयलिंग हेयर में डालोगे और अच्छे से मसाज करोगे तो यहाँ पे हमारे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हेड में होता है। कोमिंग रेगुलरली कोम करना चाहिए हमें, बिकॉज ये कोमिंग कीप योर हेयर क्लीन एज वेल एज आपके डैंड्रफ फ्री भी होते हैं बाल। And also you should do not share your comb with anybody else. Remember children, आपका खुद घर पर आप अपना कॉम्ब नहीं रखेंगे, आप किसी और का कॉम्ब नहीं यूज करेंगे ना, अपना आप किसी को यूज करने देंगे। वी शुड कवर अवर हेड व्हेन गोइंग आउट, जब बाहर जाओगे तो हेड को अपने कवर करिएगा, बिकॉज इससे क्या होगा, दैट हार्मफुल रेज हमारे सन के हेड पे नहीं पड़ेंगे और ना हमें डस्ट आएगा ना डर्ट लगेगी। सम मोर हेल्दी हैबिट्स यू हैव टू इनकलकेट चिल्ड्रन। How sleeping and walking on time leads to relax and regenerate body and mind. टाइम पर सोना चाहिए एंड टाइम पर उठना चाहिए, है ना, वॉकिंग करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, रीजेनरेट होती है। रीजेनरेट इज नथिंग बट एनर्जाइज होना नेक्स्ट वर्क के लिए। एंड वी मस्ट ईट हेल्दी मील्स, आपको हर बार ये बताया गया कि दैट यू शुड ईट हेल्दी मील्स एंड ऑन टाइम, है ना। नेवर लेट फॉर डिनर, कभी भी रात का खाना लेट में नहीं खाना चाहिए। एंड डू नॉट स्लीप आफ्टर ईटिंग डिनर इमीडिएटली, रात का खाना खाते ही जल्दी से सोना नहीं चाहिए। देयर शुड बी अ गैप बिटवीन डिनर एंड स्लीपिंग, थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि हमारा फूड डाइजेस्ट हो सके। द बॉवल मूवमेंट शुड बी रेगुलर एंड प्रेफरेबल इन द मॉर्निंग, yes, and we should cover our face and mouth while coughing, sneezing to avoid spread of infectious germs. कभी भी हमें स्नीजिंग आती है या कफिंग आती है तो हमें क्या करना चाहिए चिल्ड्रन, अपना माउथ कवर करना चाहिए। डस्ट एंड जर्म स्टिक ऑन योर बॉडी and clothes. Therefore, we should take bath daily and wear clean clothes. Trimming of nails regularly is essential so that they do not accumulate dirt. Yes, आप वीकली अपने नेल्स कट करेंगे बिकॉज इसके अंदर जो डर्ट रहता है वो अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो डेफिनेटली हम sick form. The house you should live in should be kept clean, ventilated, sunlight streaming, उसमें अच्छे से रोशनी आनी चाहिए आपके घर में, वेंटिलेशन होना चाहिए बिकॉज फ्रेश एयर आना ज़रूरी है घर के लिए। एंड सनलाइट हेल्प्स गेटिंग रिड ऑफ जर्म्स को सनलाइट क्या करता है बेटे, किल कर देता है, तो हमें उससे क्या होगा, फ्री जर्म्स, हम फ्री हो जाएंगे। सो चिल्ड्रन, दिस इज दी topic about the cleanliness and hygiene. Still, how we are going to keep our surrounding clean, that you are going to learn in your next class. So I hope you all have understood very well. We'll definitely come up with a continuation of the chapter in our next class. All of you stay safe, stay healthy, inculcate good habits to keep yourself healthy and safe. Till then, children, bye bye. Wait eagerly. I hope that you all wait for my next class. Till then, bye bye.